today we will solve RMS 2020. यहाँ पे देखो आपके लिए first question is for you. अब now whenever we are trying to solve the question paper, we don't have to focus on the particular question. We have to focus on the similar questions also. Okay. So now here's the first question. In which year was the first English factory set up? Means first English factory इस इंडिया कंपनी जो यहाँ पे रूल कर रही थी उसने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी थी? यस पोरस. मैम ए आंसर ए. Okay, and where? मैम आंसर इज ए. Answer is okay. Fine, 1651 you told me, but where? Where in India? Aradhya, please. Ma'am, Surat. Surat. Okay. Fine. This is not the answer. Okay. In 1651, East India Company set up English factory in West Bengal on Hooghly River. One more question, बच्चा. These are the years जब इससे पहले भी इंग्लिश फैक्ट्री सेट की गई थी इन इंडिया. दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें सिमिलर क्वेश्चन को भी स्टडी करना है. नाउ व्हेन यू आर सेइंग सूरत, सो इट मींस 1613 की बात हो रही है. बट इन दिस ऑप्शन वी आर नॉट हैविंग 1608 एंड 1613. यहाँ पे वो ईयर्स है ही नहीं. सो वी विल चूज द ऑप्शन 16 एंड 51. ओके आराध्या, व्हाट टू नो? Yeah, ma'am. Okay. Okay. Also, there were many questions. You will find out two options are correct. Then you have to go for the most probable. अब suppose यहाँ पे 1608 भी होता है, 1613 भी होता है, then फिर आपने क्या करना था? So that is up to you कि आपको जो most appropriate answer है, you have to switch on that. Okay. So now next question is, who was the Governor General of when the policy of Paramountcy was initiated? Lord Clive, Lord Hastings, Lord Cornwallis, and Lord Dalhousie. Now, when we focus on these types of questions, what you have to do? Obviously, you have to focus on the particular question, but also you have to go for the other questions also, like what is the policy of paramountcy? ये policy है क्या? Anyone in the class? Ariana? Yes, बच्चा. Can you answer this question? No, somebody is messaging me. Ma'am, I don't know. Okay, C. Who is messaging me? Rudraksh A. Okay, Sakit. C. Bachcha, A and C don't answer like this. Please type the full answer. Whatever you want to say. For us, please switch on the camera. Okay, Radha, please continue. Ma'am, this policy of Paramountcy, stated that the Britishers are the supreme law and law managers of the country, Britishers. And Supremacy of they can. Britishers. Okay. Yes, continue please. And the policy was given by whom? Ma'am, I think it should be Warren Hastings, ma'am. Okay, it should be Warren Hastings. Okay, fine. Lord Hastings is the right answer. And also when you are saying that the policy was about supremacy, means whatever law they are giving, whatever power they are sharing, this is the supreme power. This was the supremacy of Britishers. Means they are the company became the supreme law, the paramount power, and to protect its interest. अगर उसके interest को protect करने के लिए whatever they have to do, that is perfectly fine. उसने जो भी policy adopt करनी है, जो भी power को जिस तरह से भी अपना increase करना है, जो भी acts लाना है, like there was an act, वहाँ पे क्या हुआ था? They can arrest any freedom fighter or any leader and without even trial, बिना किसी court proceeding के वो they can imprison them for 2 years. 2 साल के लिए वो उनको जेल में डाल सकते थे. That was also good for them. That was also okay for them. Okay, fine, we can do this. So this was the policy of paramountcy. Okay, शिवराज समझ में आ रहा है बेटा? वो क्या कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं that is supreme. हम जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है? सब right है. Nothing is wrong. Whatever we are doing, that is all perfectly fine. So next question. Who tried the Rayatwari system on a small scale? अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी कर दिया है. साकेत, what happened, Saket? Yes, Why are you not taking interest? Vansh, please switch on the camera. अरे अब जा रहे तो देख सकते हैं. Aryana, no.
मैम सी ऑप्शन. C option. Okay. Actually, C is also right, but when I'm telling you, ये थोड़ा सा ये tricky question है. Anyone else? रुद्राक्ष? No. चलो. अब देखो. Fine. Ariana said fine. Thomas Munro introduced the rotary system in India. But the question is saying, who tried the rotary system on a small scale? Small scale पे किसने use किया है इसको? किसने इसको initiate किया on small scale? तो it was tried on a small scale by Captain Alexander Reid. So this is the reason we will not go for Munro, we will go for Captain Alexander Reid. Okay, Ariana? Fine. तो कई बार वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे करके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस देंगे, तो थोड़े से आपको उस हिसाब से भी प्रिपेयर करना होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The tribal group to which Birsa Munda belonged lived in. अब बिरसा मुंडा कौन थे पहले तो मुझे ये बताओ. देन उसके बाद आता है कि कौन से ट्राइबल ग्रुप से वो बिलोंग करते थे, एंड देन आता है कि ये ट्राइबल ग्रुप कहाँ पे था. 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं. ओके शिवराज. From he's a lord, I think. What? यस साकेत. आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट शिवराज. मुझे समझ नहीं आया आपका आंसर. मैम छोटा नागपुर. नहीं, आई एम आस्किंग हु वाज बिरसा मुंडा. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन, यू सेड छोटा नागपुर. यस आराध्या. Ma'am, the answer is ma'am Chota Nagpur, and ma'am Birsa Munda, ma'am he was a freedom fighter, tribal freedom fighter. Tribal freedom fighter, yes. And then he belonged to which tribal group? Ma'am, I think, Haryana. ma'am Yes, Munda tribe, ma'am Munda tribe. I think. Okay. मैम इट विल बी छोटा नागपुर. Chota Nagpur is the right answer. Fine. All of you are right. Okay, fine. So Munda tribe से he was belong from Munda tribe, and who was he? He was a freedom fighter, tribal freedom fighter, and also this tribe belonged to the place Chota Nagpur, and it is located in the northwestern Chhattisgarh and central Jharkhand. So see कितने सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से आपके नियर अबाउट 4 क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो चुका है. Please you always sit with notebook and pen so that you can make short notes. Short notes आपको बनाना है सारा का सारा. You don't have to do. I will share the PDF as it is on the Google Classroom and the recorded video also. So in the class, please don't waste time. Make your short notes. Okay. So next question is for Saket. चलो साकेत बताइए. The traders exported cocoons. Read by Santhals to. मैम कोलकाता. No मैम गाया. Gaya. option. Okay. Yes, शिवराज का टर्न कब आ रहा है? कोलकाता. B. वंश, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ आई थिंक, या आपने कैमरा अभी ऑन किया है? No, ma'am, due to network issue. Network issue. Okay, so can you answer this question? Ma'am, I think Madras. Madras. Aradhya, you also have raised your hand. Please do answer. No? Unmute yourself, bacha. Unmute नहीं हो रहा है इनका. Saket, you want to say something? No मैम. No, okay. You have raised your hand. I thought you want to say something. Okay. तूफान, तो ये जो कोकोन्स एक्सपोर्ट करते थे बच्चा, वो 2 cities में करते थे, गया एंड बुर्दवान. So Gaya is in Bihar and Burdwan is in West Bengal. But as हमें clearly Gaya दिया हुआ है in our options, we are having Gaya. So this is the reason we will not go for Calcutta. Because अगर हम second option को consider करें, that is Burdwan, तो वो बच्चा वेस्ट बंगाल में स्टेट है,
एंड वेस्ट बंगाल की यहाँ पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड उन्होंने हमें दिया, सॉरी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उन्होंने वेस्ट बंगाल का हमें दिया हुआ है, कलकत्ता। सो अगर वो गया की जगह कुछ और दे देते देन वी हैव टू गो फॉर कलकत्ता, बट अभी उन्होंने हमारे यहाँ पे क्लियर सिटी दे दिया है, सो दिस इज द रीजन दैट वी विल गो फॉर गया। ओके शिवराज गॉट इट? हरियाणा, रुद्राक्ष, बच्चा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. वंश, Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोरस, ओके बेटा। Yes, चलिए ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। आराध्या बच्चा आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है, आई एम नॉट गेटिंग। In 1850, a new law was passed to make conversion to easier. अब वो क्या कर रहे थे? 1850 की बात चल रही है, वेरी कॉमन क्वेश्चन, मींस इसका रूल चल रहा है। अब जिनका रूल चल रहा है ऑब्वियसली वही रूल बनाएंगे। सो कन्वर्जन जो हो रहा है मींस वन रीजन टू अनदर रीजन, तो कौन से रीजन में हो जाएगा कन्वर्जन? यस हरियाणा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। Ma'am, it will be A Yes. option, Christianity. यस कृष्णाजी, रुद्राक्ष यू आर आल्सो राइट। बच्चा अपना ABCD मत करो, कॉज आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आई डोंट नो, सो बेटर राइट योर ऑप्शन। जैसा कि मुझे किसी ने मैसेज किया है, कोई ABC कर रहा है एंड रुद्राक्ष ने मुझे क्लियर क्रिश्चियनिटी बोल दिया, तो फाइन रुद्राक्ष इज राइट। तो बच्चा टाइप योर फुल आंसर, ओके, नो नीड टू टाइप ABCD बिकॉज आई डोंट नो योर आंसरिंग ऑफ दिस व्हिच क्वेश्चन। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, क्रिश्चियनिटी इजियर। अब इसमें भी क्या हो रहा था, the people who are converting into Christianity, they could inherit the property of his ancestors. उनको उनकी property as it is मिल रही थी। बाकी पे as I told you supremacy law और and there were many policies by which Britishers were taking control of their properties. But those who had converted into Christianity were having rights on their on the property inherited by their ancestors. Okay. If there is any question, Rudraksh, बच्चा आप सिर्फ ऐसे टाइप कर रहे हो, raise your hand and you can answer in the class. So next question. Okay, ma'am. Okay, now answer this question. Not an issue of right or wrong. We haven't done anything yet. अभी तक तो मैं ऐसा कुछ study हुई नहीं है हमारी. These are just sample paper. Okay, you can participate. चलिए. So Rudraksh is going to answer this question. In which year was power transferred from East India Company to British Crown? कब power transfer Ma'am, हुआ? 1858. Yes, very simple question. अब हुआ क्या था बच्चा? ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 600 and ruled till 1857. After the Sepoy Mutiny, जो आपका रिवॉल्ट हुआ है 1857, आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो ब्रिटेन और जो क्राउन था उन्होंने प्राइमरली ब्लेम किया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, फॉर इनएप्टीट्यूड, कि आपकी गलती की वजह से क्या हुआ है, ये जो म्यूटिनी सिपॉय म्यूटिनी हुआ है वो हुआ है, ये जो विद्रोह हुआ है, ये जो रिवॉल्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ योर इनएप्टीट्यूड ये हुआ है। सो दिस वाज द रीजन कि 1858 में क्या हुआ, द रूल ऑफ इंडिया केम अंडर द क्राउन, क्राउन के अंडर हमारा जो इंडिया है उसका रूल आ गया। ओके साकेत, राइट आंसर बच्चा। चलिए, व्हाट इज जामदानी और जामदानी क्या होता है? जामदानी ज्वेलरी है, फाइन मसलिन है, फ्लावर्स है, बुक है, क्या है? क्या आपका हो रहा है? Please try to unmute yourself. Chorus, you also please try to unmute yourself. Ma'am, I think B. B. Okay. It is a fine muslin, ma'am. Okay. Fine muslin. क्या होता है फाइन मसलिन? मैम एक तरह का मैम आई थिंक मैम कोई कपड़ा होता है मैम। यस, कपड़ा, मैम इस टाइप का कुछ कपड़ा होता है फाइन मसलिन। और ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चा? ये बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन होता है वो आपके बांग्लादेश में होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का, आई थिंक साड़ी में, दुपट्टाज में, इन सब चीजों में ये यूज हो सकता है। मटेरियल देख करके तो यही लगता है। सो मसलन टेक्सटाइल है ये, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? इन बांग्लादेश। ओके रुद्राक्ष, ओके साकेत, दोनों ने सही आंसर किया है। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ गिव मी 2 मिनट्स। चलो, who among the following set up the Asiatic Society of Bengal? Who set up this society and also what was the function of this society? Okay, वंश बताएंगे, बताइए वंश। Ma'am, I think William Jones. ओके, एंड ये कर क्या रही थी, क्या वर्क कर रही थी, क्या वर्क एसोसिएट हुआ था इनको? Ma'am, decide. डोंट नो, आराध्या यू नो?
नहीं हो रहा आराध्या आपका. Anyone else? आराध्या, I'm giving you option to Yes, unmute ma'am. yourself. हाँ जी, Ma'am. बताइए. मैम वो हैंग हो जाता है थोड़ा सा मैम. अच्छा. मैम ऑप्शन ए मैम विलियम जोन्स करेक्ट है मैम. मैम Okay. इन्होंने मैम ये सेटअप मैम स्टडी पर्पस के लिए मैम करा था मैम. Yes, for the rediscovery of India's glorious past and promotion of Western Yes, ma'am. culture in India. Means हमें हमारे glorious past को भी rediscover करना है and also promote करना है Western culture in India to fight social and religious evils. जो भी हमारे social like caste system and all religious evils है जो like मतलब हिंदू मुस्लिम and all ये चीजें होती है लोगों के mind में. तो to remove them हमें क्या करना है, अपने past से बहुत सी चीजें सीखनी है, also हमें Western culture भी adopt करना है so that we could fight these evils. So ये आपका जो society है Asiatic Society of Bengal. तो ये बच्चा was founded by Sir William Jones and in red the function or the aim of this society has been mentioned. Okay, so आप इस PDF में से और भी जो extra information आपको चाहिए you can get from this PDF. I will share the PDF after the class. Next question. Who led 3 movements for temple entry from 1927 to 1935? अब ये time देखो कौन सा चल रहा है 27 to 35. Who was fighting for the rights of scheduled caste and scheduled tribes? दलित के rights के लिए who was fighting? राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, डॉक्टर अम्बेडकर और एनी बेसेंट. किसके बारे में हमने हिस्ट्री में सुना है कि वो SC STs के राइट के लिए फाइट कर रहे थे? यस साकिब, क्या लगता है आंसर इसका? यस रुद्राक्ष. मैम डॉक्टर अंबेडकर. Ma'am, Dr. B.R. Ambedkar. यस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. तो बच्चा ही वाज फाइटिंग कि ये जो पहले क्या होता था कि जो लोअर कम्युनिटी के लोग थे SC ST और जिनको हम दलित्स कहते हैं उनकी एंट्री बैन थी ये आपके टेम्पल सेट्रा में. सो ही वाज फाइटिंग कि नहीं सब इक्वलिटी वाले जो राइट्स थे उनको प्रोवाइड हो जाए. Okay, next question. What is the exclusive right over any idea or invention known as? अगर आपका कोई ओरिजिनल आइडिया है या कोई इन्वेंशन आपने किया है सो उसको आप किस तरह से अपना एक्सक्लूसिव राइट बना सकते हो कि उसको कोई और यूज ना कर पाए? क्या होगा? कॉपीराइट, इनोवेशन, जॉइंट कंपनी और पेटेंट? वंश बताएंगे. यस वंश. मैम कॉपीराइट. कॉपीराइट. ये यस आराध्या. मैम yes मैम I also think copyright only. Copyright only. Yes, Porus. Ma'am, copyright. Copyright. Okay, Saket. मैम ए ऑप्शन कॉपीराइट. क्या बात है, सारे कॉपीराइट ही कह रहे हो, किसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है? आर्याना, क्या ऑप्शन है आपका? Ma'am, it will be D option, patent, ma'am, because Yes. copyright is for the books and the patent is for the idea in the invention that we have made. Okay, now boys, difference पता चल गया between copyright and patent as Aryana told us. So when we talk about some invention, so बच्चा उसके लिए आपको patent करवाना पड़ेगा. Okay, चलिए next question. थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं लोग, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं हमें, आंसर आते हुए भी हम लोग रॉन्ग कर जाते हैं कई बार. Resources whose entire quantity not known is known as. मतलब environment में तो वो resources present है but अभी हमें उनकी पूरी quantity नहीं पता है. Also we are not having the we can say क्या word होना चाहिए? It should be हमारे we are not having those techniques. हमारे पास अभी इतनी techniques नहीं है कि हम क्या कर सके, उन resources को use कर सके. इकोनॉमिकली वो क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं. सो अगर कोई रिसोर्स, सपोज आज आपको एक मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपकी घर बना हुआ है दैट इज ऑफ 2 करोड़, ठीक है, द वैल्यू ऑफ दैट हाउस इज 2 करोड़ एंड इफ यू कम टू नो कि उसके नीचे 10 lakhs का जो है गोल्ड है, तो 2 करोड़ के घर को आप हटाना वहां से, मतलब ओके समझोगे? इट बी ओके आर्याना? ओके होगा उस 2 करोड़ के घर को वहां से गिराना फॉर गोल्ड ऑफ 10 lakhs? नो, इट No, विल बी ma'am. स्टूपिडिटी. सो ऐसे रिसोर्सेज अभी जिनकी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि इकोनॉमिकली फिजिबल हो सके, वो मींस हमारा बजट उससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो हमारे एक्सपेंसेस से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए. एक्सपेंसेस कम होना चाहिए, उस रिसोर्सेज से हमारे पास बेनिफिट्स ज्यादा होने चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होने चाहिए. सो अभी तक जो ऐसे रिसोर्सेज है बच्चा, उनकी क्वांटिटी है बट हमने अच्छे तरह से अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया है.
सो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहा जाएगा? देयर आर मैनी। ओके, मेरे पास आ रहे हैं। साकेत, ओके, सही आंसर। रुद्राक्ष, ओके रुद्राक्ष। आराध्या, ओके फाइन, राइट आंसर। यस रुद्राक्ष, बताइए क्या है आंसर? Ma'am, the answer is potential resources. Yes, potential resources. For example, uranium in Ladakh. And when I say H2O, ठीक है, H2O क्या हो जाएगा? Ma'am, I was H2O, also typing the uranium. okay, uranium. I'm talking about H2O. Like we are having H2O है क्या? पहले तो मुझे ये बताओ, वेरी इजी, क्या है H2O? सबको ही पता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी। मैम वाटर है मैम। हाँ, तो अभी आप H2O मिक्स करके पानी बना लो। एज कह रहे हैं कि नहीं, पानी का बहुत ज्यादा इशू होने वाला है, तो बना सकते हैं। अगर H2O मिक्स करके हमें वाटर बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। बट थिंग इज कि अभी तक ऐसी टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई है कि ये क्या हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो जाए, कि हमें सस्ता पड़े, हमें बहुत चीप पड़े, इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो ज्यादा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सो दिस इज द रीजन कि ये पोटेंशियल तो है लेकिन अभी हम यूज नहीं कर पा रहे। ओके, गॉट इट? साकेत, समझ में आई बात? वैसे यूरेनियम के रिसोर्सेज है लद्दाख में। मैम। हरियाणा, समझ में आ रहा है बेटा? यस। Yes, ma'am. ठीक है। सो ऐसे रिसोर्सेज जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो है, बट अभी तक हमारे पास इतना इकोनॉमिकली फिजिबल टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम क्या कर सके, उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। चलो, an international convention that lists the barrel species of animals and birds in which trade is prohibited is known as। अब इन्होंने क्या किया है, जो endangered species है फ्लोरा एंड फौना में, उनको क्या करना है बच्चा, प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ है, कन्वेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, कि हम क्या करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इन जो इसके अंदर जो लिस्टेड हैं स्पीशीज, उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। सो ये जो कन्वेंशन है आपका कौन सा है? यूएनओ, सार्क, नाटो, साइट्स। यस साकेत? मैम। सार्क, ओके। रुद्राक्ष सार्क, साकेत सार्क, ओके। कोरस? Ma'am, option C. ओके, नाटो। वैसे नाटो पता है क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म किया था यूएसए ने, जब यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था, तो यूएसए ने ये फॉर्म किया था कि अगर आप हम पे अटैक करोगे यूएसएसआर और उनके फ्रेंड्स, तो हम भी आप पे अटैक करेंगे। सो ये तो बचा एक तरीके से आपकी मिलिट्री अलायंस था। नाटो ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है। यस आराध्या? मैम आई थिंक मैम ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी, बिकॉज़ यूएनओ हम सबको पता है, सार्क भी हमें पता है। सो साइड इज द राइट ऑप्शन। मैम कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रेड endangered species of wild flora and fauna and flora। वाइल्ड एंड Okay? फौना। ठीक है। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा आप देखो, आपको पता है कि आपके बैचेस चल रहे हैं, और आपकी स्कूल की वेबसाइट भी है, आपका ऐप भी है, तो आपको उसमें जाकर के आप देख सकते हो कि आप कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वालिफाइड कर रहे हो। ऑल्सो इफ यू वांट टू स्टडी पर्टिकुलर टॉपिक, तो वहाँ पे टॉपिक्स भी आपके मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, सारे रीजनिंग, सारे टॉपिक्स वहाँ पे दिए हुए हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू, प्लीज रीड करंट अफेयर्स डेली। 2020 की करंट अफेयर्स भी रीड करना स्टार्ट करिए। आपको आपके स्कूल की वेबसाइट पे भी प्रोवाइडेड है, ऑल्सो मैं भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अलावा बच्चा एक ऐप भी है 24/7 अड्डा, डाउनलोड दैट ऐप और डेली करंट अफेयर्स करना। 2020 के आपके से स्किप हुए, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने किए होंगे। 2021 के भी कर लो, बहुत अच्छा वेटेज होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करंट अफेयर्स का, आगे तक पूछ जाएंगे। बट यू डोंट हैव टू नोट डाउन, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं करंट अफेयर्स के। Saket, what happened? Why are you feeling sleepy? इतना बोर पढ़ा रही हूँ क्या मैं? है इतना No, बोरिंग हो रहा ma'am. है? और थोड़ा सा No, ब्रेक ले ma'am. लेते हैं। नो, ओके चलो ठीक है। सो यू ओनली हैव टू रीड दोस करंट अफेयर्स, यू डोंट हैव टू नोट देम डाउन। नोट नहीं करना है कुछ भी, बट स्टडी करो जितने कर सकते हो मैथ से। 24/7 अड्डा, उसको आप कर सकते हो। आल्सो आपके कितने सारे न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इतने सारे तो हैं, द हिंदू, सब चीजें 24/7 अड्डा रहेगा। जीके टुडे, देयर आर मेनी वेबसाइट्स जहाँ से आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। हाँ जी, कौन है ये? हाँ, हिंदू न्यूज़पेपर, वेरी नाइस। इवन आईएएस की प्रिपरेशन जो करते हैं, यूपीएससी को लोग भी यही पढ़ते हैं। बट करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट रखो, आगे आपने जो भी एग्जाम देना है करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। चलिए
Minerals that lie near the surface are simply dug out. What is this process known as? क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ड्रिलिंग, शाफ्ट माइनिंग, क्वेरिंग और ओपन कास्ट माइनिंग? रुद्राक्ष, वंश और रुद्राक्ष बताएंगे, चलिए बताइए। मैम क्वेरिंग। क्वेरिंग, ओके। मैम ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, माइनिंग तो ज्यादा नहीं हो जाएगा डीप? यस कोरस? मैम क्वेरिंग। यस, क्वेरिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो आपके सरफेस पे मिनरल्स होते हैं उनको इजीली डग आउट किया जाता है और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्वेरिंग कहा जाता है। Which of the following is related to deposit of gold? अब गोल्ड कहाँ पे बहुत ज्यादा है या कहाँ पे मतलब काफी क्वांटिटी में मिल रहा है? सिंपल क्वेश्चन, क्या है आंसर? ओके, आराम से बताएंगे, बताइए। मैम ऑप्शन ए कोलर। कोलर, मैम इसकी मैम मूवी भी है मैम, केजीएफ मूवी है मैम। कौन सी मूवी है? मैम केजीएफ मैम मूवी भी है मैम, ओके, कोलर गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, चलो इन्होंने मूवी बताई है, वेरी गुड। देखना अगर आपको टाइम मिलता है कभी तो, बट अपने एग्जाम्स को साइड रख के नहीं, जब टाइम मिले फ्री हो तब आप देख सकते हो। ओके, तो ये कर्नाटका में है, केजीएफ। चलिए, फ्रॉम व्हिच ओर इज एल्यूमिनियम obtained that is later used in automobiles? अब देखो उन्होंने कितना क्वेश्चन घुमा दिया, सिंपल पूछ सकते थे ना कि एल्यूमिनियम इज obtained from which ore, खत्म हो जाती बात। इसको और आगे कर दिया उन्होंने, इज लेटर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, जस्ट टू कंफ्यूज अस। हरियाणा क्या हो सकता है? बॉक्साइट, टिन, मैग्नीज और कॉपर? कोरस? मैम ए ऑप्शन बॉक्साइट। ओके, मैम बॉक्साइट ही कहने वाला था। बॉक्साइट ही कहने वाला था। साकेत, आराध्या, वंश, बड़ा मैम बड़ा ऑप्शन ए होगा मैम, बॉक्साइट होगा बॉक्साइट ही मैम। होगा। चलो, आप सारे इतने श्योर होके कह रहे हो तो फिर मैं कैसे रॉन्ग कर सकती हूँ? फाइन। और बाद में ऑब्वियसली इसी से ये सारी चीजें व्हीकल जो बॉडी है, फ्रेम है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती है। चलो, which of the following is the leading producer of coffee in the world? कॉफी की बात आ गई तो जब भी हम इस तरह के हाँ मतलब हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और कंट्रीज की बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड लेवल पे तो देखना है, इंटरनेशनल लेवल पे तो देखना है, ऑल्सो हमें इंडियन लेवल पे भी देखना है। तो आप मुझे दोनों का आंसर करिए कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। इसने आंसर नहीं किया, आंसर तो सबको आ रहा है। वी आर हैविंग 6 स्टूडेंट्स है। Ariana, what happened बेटा, आज आप हैंड रेज नहीं कर रहे हो? Any issue? नो मैम देयर वाज नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू? हाँ, पूरस क्या है ये कौन सा तरीका है? चलो, मैम कौन है? मैम ब्राजील आएगा। ब्राजील। और इंडिया में कौन है? यस मैम। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? मैम कर्नाटका। Yes, both answers are right. So Brazil in the world and Karnataka in India. Which of the following is often called the backbone of modern industry? Off हो जाएगा ये, सॉरी मैंने ऑफ कर दिया। of modern industry किसको बोलेंगे? अब देखो इसमें कितने बच्चे सही बोलते हैं। आराध्या बताइए। मैम ऑप्शन डी है स्टील। स्टील, ओके। वंश, रुद्राक्ष? मैम स्टील। स्टील, मैम मुझे पता है। स्टील। मैम मैम इट स्टील। विल बी स्टील। स्लाइड को करो और उसके बाद फिर मुझे आंसर करो। दोनों ही इक्वली राइट है। आप गूगल भी करके देखोगे आपको वो ही पिएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब दोनों ही बैकबोन है तो क्या करेंगे हम? वी विल चूज विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए जो बहुत एप्रोप्रिएट है? साकेत बताओ, अभी भी स्टील ही चूज करोगे? मैम आयरन। ओके, क्यों आयरन? डोंट नो। मुझे लॉजिक तो दो, मतलब मुझे लॉजिक तो बताओ, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। ओके रुद्राक्ष, कुछ मुझे लॉजिक तो पता मैम चला। बिकॉज मैम स्टील भी आयरन से ही फॉर्म होता है। ओके, और कोरस आपका क्या लॉजिक है इसके पीछे? मैम स्टील, क्योंकि मैम स्टील का खराब नहीं हो सकता, आयरन पे जंग लग जाती है तो लोग। अच्छा, आयरन पे ओके जंग लग जाती है। हाँ जी आराध्या, क्या है आपका ऑप्शन? मैम स्टील मैम, क्योंकि मैम आजकल मैम मैम जैसे मैम कोरस ने बताया कि जंग लग जाता है तो मैम इसलिए मैम आजकल ज्यादा मैम स्टील का यूज किया जाता है मैम। कहाँ का यूज होता है स्टील? मैम मैम स्टील मैम जैसे कि
आजकल मैम हमारे लंच बॉक्सेस मैम स्कूल के जब भी आते हैं मैम वो सब स्टील के बने होते हैं ज्यादातर। बट मॉडर्न इंडस्ट्री में अकेले वी कैन नॉट ऐड यूटेंसिल्स। मैम मैम बट मैम आयरन तो मैम मैम रस्ट जाता है मैम, वो किसी भी चीज में हमको लगाए मैम ज्यादा बट देर से नहीं स्टिल टिकेगी। अकॉर्डिंग टू मी जो ज्यादातर मैम ये मशीनरी है ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होता है स्टील। या मैम यूज होता है।